1 minute for each question. The value of sin 15 plus cos 15 is have you solved? If you have solved, student, then reply in comment box which option is the right, A, B, C or D. Option A is 1, option B is 1 by 2, option C under root 3 by 2, option D root 3. Which option is the correct option? Shreya Agrawal, Anushka Raj, Agreem. Am I audible to you? Agreem, just unmute yourself and tell me, am I audible to you? Okay. Option 1 is the right answer. A is the right answer. Anushka, it is too much time you are taking. Here the question is only sin 15 plus cos 15. The value of sin 15 plus cos 15 it is to determine. And there are 4 options till now. Out of 16 students, I think I can see 15 students are there and no one is replying the option. 3 minutes हो गए, 3 minutes 15 seconds. Only Agreem has replied. Okay, students, don't worry. See the solution. This is the answer. Option C is the correct option. Under root 3 by 2. How can you find this one? See, as you know, sin 15 plus cos 15 equals sin 15 can be cos 15 can be written as cos 19 minus 15, that is sin 15. ठीक है, तो sin C plus sin D, apply 2 sin C plus D by 2 और यहाँ पे sin 15 plus cos 19 minus is the value cos 15. तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत मतलब आंसर गलत हो गया है, बिकॉज cos 15 को cos 19 माइनस 15 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपका आंसर गलत हो गया है, आप उसको करेक्शन कर लेना।
वो 75 है, 15 के जगह पे 75 है। क्लियर? 15 के जगह पे 75 है। एंड देन दिस वन विल ऑफ द फॉर्म a plus sin c plus d and then apply sin c plus d, then your answer will be root 3 by 2, 2 sin c plus d by 2 sin t minus c by 2. Clear? That will be your answer. 75 में 50 माइनस करोगे 60 आएगा, जिसकी वैल्यू सॉरी क्या बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ tan a by 2 minus cot a by 2 plus 2 cot a is 0, 1, minus 1, none of these. Tan a by 2 minus cot a by 2 plus 2 cot a is 0, 1, minus 1, none of these. See the solution. Tan a by 2 minus cot a by 2 plus 2 cot a. This is given. Tan a by 2 can be written as sin a by 2 upon cos a by 2. Cot a by 2 can be written as cos a by 2 upon sin a by 2 and 2 cot a. Clear? Now this one sin a by 2 cos a by 2 minus cos a by 2 upon sin a by 2, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये 2 cot a तो चल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते लास्ट तक जाएंगे, 2 cot a यहाँ पे जाएंगे, सिर्फ इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस 2 cos a अपॉन साइन ए और 2 cot a साइन, ये जो 2 cot a अभी भी ऐसे ही रहेगा, फिर इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस 2 cot a और प्लस 2 cot a इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इन दोनों टर्म को आप सिंप्लीफाई करते जाना, लास्ट तक सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? So option, this was the question. The value of tan a by 2 minus cot a by 2 plus 2 cot a. The option is 0 because the sum of these two will be equal to minus 2 cot a. You are simplifying by using this. साइन कॉस में कन्वर्ट करके जनरल जो है जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही कर देना, एक ही आइडेंटिटी आपको यूज आएगी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल cos ए। सीधा थर्ड क्वेश्चन, क्या द वैल्यू ऑफ 4x sin x into sin x plus 5/3 into sin x plus 2/3, ये मल्टीप्लाई है 4 into sin x into sin x plus 5/3 multiply sin x plus 2 pi by 3. This one, this sign and this sign is multiplied. What is the value of this 3? There are 4 options: sin x, sin 2x, sin 3x and sin 4x. sin 4x को sin 2 into 2x के टर्म में पहले ओपन करते हैं, फिर उसके बाद 2x की आइडेंटिटी लगा देते हैं,
साइन 4x की आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व। So this one is the solution. The option is sin 3x। ठीक है, जिसमें देखो इसमें करना क्या है, साइन x और x प्लस पाई बाई 3 है, ये साइन a प्लस बी के फॉर्म में, इसको साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b ओपन कर देना है। और ये भी साइन a प्लस बी है, इसको साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b में ओपन कर देना है। फिर जो पाई बाई 3 की वैल्यू है, कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, और साइन पाई बाई 3 मतलब ये भी साइन 60 है। तो इसकी वैल्यू को अगर आप रख रहे हैं तो आपको इस टाइप की आइडेंटिटी मिल जाएगी, साइन एक्स बाई 2 और प्लस अंडर रूट 3 इंटू कॉस एक्स बाई 2। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, जब पाई बाई 3 की वैल्यू रखने के बाद, ठीक है ना, इस स्टेप पे आ जाएंगे, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसको ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, और उसके बाद जब इनको, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको साइन में चेंज कर देना, क्योंकि वैल्यू साइन में ही आ रहा है। तो फाइनली अगर आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन 3x। तो मेन इसमें क्या है कि इन दोनों को साइन a प्लस बी और साइन a प्लस बी, सिर्फ साइन इन दोनों को ओपन करना है, साइन a कॉस बी और साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। फिर कॉस और साइन की जो एंगल है उसकी वैल्यू रख लेना, वैल्यू रखने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कॉस स्क्वायर को चेंज कर देना है। जैसे ही कॉस स्क्वायर चेंज करोगे आपको साइन 3x की आइडेंटिटी मिल जाएगी। So the option C is the right option. Now come to question number 4. If tan x equal cos 9 plus sin 9 upon cos 9 minus sin 9, then what is the value of x? tan x को लिख रखा है cos 9 अपॉन प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है। जो न्यूमरेटर का जो टर्म है cos 9 प्लस 9, इसमें सिर्फ साइन चेंज किया हुआ। आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब tan के एंगल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देयर आर 4 ऑप्शन 45, 54, 36 और नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ओके, चलो आंसर पे चलते हैं। आप लोग लगभग अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा लिए होंगे। वर्धन है रिप्लाइड की ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलो चलते हैं इसके आंसर पे। सी डी इज द राइट ऑप्शन 54। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप हिंट के तौर पे देख लो। ये तो पहला स्टेप जो एज इट इज क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है ना। अब ये दो स्टेप देखना है, cos 9 प्लस sin 9, इसमें क्या करना है, cos 9 को कॉमन ले लेना है। इस ऊपर वाले टर्म में देखना केवल न्यूमरेटर वाले टर्म है। cos 9 कॉमन लेने का मतलब जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो जब cos 9 में यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ sin 9 अपॉन cos 9 होगा, और ये cos 9 बाहर आएगा। ऐसे ही इसमें भी cos 9 कॉमन लेंगे। cos 9 कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ sin 9 अपॉन cos 9। अभी देखो sin 9 अपॉन cos 9, ये tan 9 हो गया, और ये भी tan 9 हो गया, और ये 1 माइनस tan 9, 1 प्लस tan 9। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45, ये आ जाएगा 1 tan 45 प्लस tan 9, और इसको लिख सकते हैं 1, इसको 1 ही रहने देना, माइनस, और tan 9 में 1 मल्टीप्लाई करें और 1 को tan 45 लिख दे तो कोई अंतर नहीं आएगा, tan 45 इंटू tan 9 आ जाएगा। अब ये बन गया
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मतलब tan a प्लस b का पूरा फॉर्मूला बन गया। तो tan x इक्वल 45 प्लस 9 आ जाएगा, tan x इक्वल tan 54, सो x इक्वल 54। ठीक है, एक ही ट्रिक है इसमें, क्या है कि cos 9 को आप बाहर कर लेना, कॉमन कर लेना न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो जैसे कॉमन करोगे cos 9 से cos 9 कैंसिल हो जाएगा, cos 9 से तो cos 9 कैंसिल होगा, और ये अंदर का जो टर्म होगा 1 प्लस tan 9 1 माइनस tan 9 होगा, जिसको tan a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 को tan 45 लिखते ही लिखते हैं, और tan 9 को tan 9 ही रहने देंगे। डिनोमिनेटर में tan 9 की जगह पे साथ tan 45 लगा देंगे, ताकि tan a प्लस b का कंप्लीट फॉर्मूला दिखे, आइडेंटिटी दिखे। फिर आप उसको 45 b 9 है तो दैट इज 54, तो tan x इक्वल 54, x इक्वल 54। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ ABC, जिसमें sin A माइनस cos B, ये तो देन व्हाट इज द एंगल B, ये नहीं आपको सिलेबस में नहीं, इसलिए हम आपसे नहीं पूछेंगे। चलो इसको बताओ, द वैल्यू ऑफ cos 420, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 420? ये तो आसान है, और आई थिंक कि आप इसको रिप्लाई कर सकते हो, ऑप्शन भी आपके पास है। ठीक है, रिप्लाई स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ cos 420। ये ऑब्जेक्टिव केवल आज के लिए, आज के बाद दोबारा ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे, बाकी आप खुद ऑब्जेक्टिव करेंगे। एक आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि कैसे पैटर्न आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस आपको करना है। आपको बता दिए कि आपके ML अग्रवाल में तो कहीं मिलेगा नहीं, तो RD शर्मा और अदर बुक से ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करना है। Reply students, out of 15 2 is left, yes, C is the right option। C का आपको राइट ऑप्शन आ रहा है 1/2। चलो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी 1/2, गुड, क्योंकि 420 को 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, और जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट cos 60 इक्वल 1/2, so this is the right option। वन मिनट स्टूडेंट, बहुत तेजी से। You can find this question very easily, because this is from height and distance. When the length of shadow of a pole is equal to height of the pole, then the elevation of the source of light is, reply option 30, 60, 75, 40, A, B, C, D. Which option is the correct? This is this is not from the syllabus, but this is from class 10th का एक क्वेश्चन है एक तरीके से। डी, अनुष्का राज हैज गिवन राइट आंसर। वैसे जब इक्वल शैडो और पोल की लेंथ इक्वल होगी तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 ही आएगा, तो 45 डिग्री tan 1 की वैल्यू होती है, तो दिस इज 1। ठीक है, ओके, you have to find the least value of cos square theta plus sec square theta। मिनिमम वैल्यू कितना है? 0, 1, 2, more than 2। what is the least value of cos square theta plus
सेक स्क्वायर थीटा। लीस्ट वैल्यू मीन्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है ना। सीधा आंसर देखो, a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यही क्वेश्चन है ना 11। हाँ, अगर if the equation of the form a under a cos square theta plus b sec square theta, अगर इस फॉर्म में होता है तो उसकी लीस्ट वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी होता है। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है, मेमोराइज कर लेना। अगर a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा का फॉर्म होता है तो उसकी लीस्ट वैल्यू जो होती है 2 अंडर रूट ए बी होती है। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो a की भी वैल्यू भी 1 ही है और b की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि a और b का, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे cos स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, sec स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, a भी 1 है, b भी 1 है। तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें 2 अंडर रूट ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 दैट इज 2। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ द a cos square theta plus sec square theta is 2। so option C is the correct option। इस चीज को मेमोराइज रखना, अगर ये इस फॉर्म में आता है इसकी लिस्ट वैल्यू इतना आती है। Okay, the value of sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1 is 0, 1, tan 8a upon tan 2a, tan 2a upon tan 8a। The value of sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1। इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, जो ऑप्शन समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, अब इसके सॉल्यूशन पे देख चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी तो है, पर आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़े जो सॉल्यूशन है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। tan 8a माइ सी ऑप्शन राइट है। इसमें करना क्या है, सेक पहला टर्म जो है सेक को कॉस में चेंज कर दो। आपको पता है सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, तो जब चेंज करोगे तो वो 1 माइनस कॉट ए आएगा, 1 माइनस कॉस 4a आएगा। अब इसमें जो वन वन जो है ना, वन को आप कैंसिल करते हो। कैसे कैंसिल करते हो कि cos 2a की 3 आइडेंटिटी आपको बताए थे, 1 माइनस 2 cos 2 साइन स्क्वायर ए और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब जैसे cos 2a है तो एंगल उसका हाफ आता है ए, अगर 4a आएगा तो वहां पे एंगल कितना आएगा, 4a का हाफ 2a। मतलब अगर cos 4a आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। वैसे ही अगर 8a है तो 8a का हाफ 4a आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4a, 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1 cos स्क्वायर 4a माइनस साइन स्क्वायर a। ये 3 आइडेंटिटी, मतलब जो जिस एंगल की आइडेंटिटी होती है उसकी हाफ उसमें आता है। तो यहाँ पे जो cos 8a है, देखो इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4a लगाओगे तो ये 1 कट जाएगा, और यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a लगाएंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, cos 2a की आइडेंटिटी से, इसके हेल्प से, तो जब कट जाएगा इसके बाद सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई में ही है। अब आपको सिर्फ सिर्फ जो है
साइन 2a इक्वल टू साइन ए कॉस ए के टर्म में ले लेना है। तो आपको फाइनली जो आंसर साइड जो सिंप्लीफाई जैसे करोगे साइन 8a अपॉन 10 मिल जाएगा। साइन 8a और कॉस 8a एक साथ आ जाएंगे और साइन 2a और कॉस 2a 8a आ जाएंगे। यानी इस बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको करना क्या है, सेक को कॉस में चेंज कर लेना है और फिर कॉस को जैसे चेंज में करें फिर 1 कैंसिल करा दो कॉस 2a की आइडेंटिटी। जैसे ही आइडेंटिटी कैंसिल कराओगे ये पूरा सिंप्लीफाई होकर के अपने आप जो है tan 8a अपॉन tan 2a के टर्म में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। साइन 7x 5x अपॉन, ये देखो ये साइन c प्लस साइन डी अपॉन कॉस c प्लस डी ये अलग है और ये साइन c प्लस साइन डी अपॉन कॉस c प्लस डी अलग है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यू विल हैव टू रिप्लाई द ऑप्शन। जो क्वेश्चन लेंदी रह रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी तो ओरल क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। कोई बहुत बड़ी वही क्वेश्चन जो cos 2a cos 3a sin 2a sin 3a इसी पे क्वेश्चन आएंगे आपके। और कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक फंक्शंस है उसी पे ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ भी साइन सी प्लस जो कंपाउंडेड एंगल का आइडेंटिटीज है वही लगेंगे यहाँ पे और वही लगाया भी होगा। लगाने के बाद से इनमें से एक ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही इनको अप्लाई करोगे, यशवर्धन हैव रिप्लाइड तो ऑप्शन बी 2 tan 6a। चलो यशवर्धन आपका ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन आपका 2 tan 6a बिल्कुल सही ऑप्शन है। हर्षवर्धन हैज गिवन द करेक्ट ऑप्शन 2 tan 6x। देखो यहाँ पे वही किया हुआ है। देखो साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगा दिया और यहाँ पे cos c प्लस डी की cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगाया। यहाँ साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगाया, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगाया। लगाने के बाद इसको सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे आपको फाइनली दो टर्म में आंसर आ जाएंगे। tan 6 साइन 6 अपॉन cos 6 ये भी tan 6 आ जाएगा और भी tan 6 दोनों मिलकर के 2 tan 6x द, ठीक है। तो सिर्फ c प्लस डी लगाएंगे आपको आंसर मिलना ही मिलना है। नाउ द वैल्यू ऑफ cos 4a माइनस cos 4b आपको बताने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो cos 4a माइनस cos 4b में 4 ऑप्शन आपको दिया है। इनमें से विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। cos 4a माइनस cos 4b। स्टूडेंट्स आई होप थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है और स्टेप में है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इसमें क्या करेंगे, इसको cos 2a की आइडेंटिटी से ओपन करना है, इसको भी cos 2a की आइडेंटिटी से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस टाइप पे आएगा, इसको अलग कर लेंगे। फिर इसमें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी लगाने के बाद फिर इसको cos 2a की आइडेंटिटी से ओपन करना है। हर जगह cos 2a की आइडेंटिटी से ओपन करते जाओगे, फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मतलब करना सिर्फ आपको है cos 2a की आइडेंटिटी लगाते चले जाना है। फाइनली दो बार लगाओगे और एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो आप फाइनल स्टेज पे पहुंचोगे और 8 आपका राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन आपको एक फॉर्मेट दिए हैं कि इस लेवल के क्वेश्चन और ऐसे ही आपसे
समझे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी लेवल तक तैयारी करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि लेवल क्या होगा। और लास्ट कल जो 3.7 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कल आपको कराएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट डे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।